Yes, students, in this session we have proved law of refraction of light using Huygens wave theory or proof of Snell's law using Huygens wave theory. We have also discussed how refraction of light take place by using Huygens theory. So look, first of all, in case first we prove Snell's law when light travel from rarer to denser medium. So look, that is the separation which separate two medium, rarer medium and denser medium. Yes, first and second. Now from the source, light rate vibrations waves travel from one particle to another particle. Disturbance transfer from one particle to another particle, and at an instant time a particle receive the vibration and set into vibration. In the same time, from the source, disturbance of vibration transfer from one particle to another particle, and in the same time the particle which present on AB line start to vibrate. Again listen, from the source, disturbance of vibrations transfer from one particle to another particle. As a result, wave travel, and when a particle receive the vibration, receive the disturbance, receive the energy and set into vibrations, in the same time all the particle which present on that AB start to set vibrations in same phase. That's why AB is a incident wave, friends, and these are the incident waves. These are the incident waves. Yes, this is known as incident wave front. Incident wave front. Now, at the point, that is the point of incidence. At the point of incidence, B total normal. That is the angle of incidence I. And in the previous session, we have discussed that waves makes angle 90 degree with the position of wave front according to the geometry of Huygens theory. So that angle is I. Then this angle will be equal to 90 minus I. Now each vibrating particle placed on AB wavefront acts like a new source of wave, fresh source of wave from which vibrations or disturbance start to travel. So from B, secondary wavelets travel, and after t time, secondary wavelets moves with velocity v1 and cover distance v1 into t and is at the point B dash. In the same time, from the A, vibrations travel, secondary wavelets travel. Now light waves travel from rarer to denser medium, so bend towards normal. Now in denser medium, speed of wave is less. That's why in the same time, in the denser medium, light ray covers less distance with velocity v2 as compared to BB dash. So A dash is shorter than BB dash. From the same time t, waves secondary wavelet travel and reach from A to A dash. Now if from each point, each vibrating particle placed on wavefront transfer the disturbance, secondary wavelet travel and reach at after t time at another particle. Now we obtain the group of vibrating particle which start to vibrate after t time. So according to geometry of Huygens theory, we draw the arc of A dash radius. We draw the arc of A dash radius, and at that arc we draw the tangent. According to theory of geometry, this tangent pass through all the particles which vibrate after t time. B dash also vibrate after t time, start to vibrate after t time. That's why that tangent also pass through the B dash. Now A dash B dash is the new wavefront. A dash B dash is the new group of vibrating particle which start to vibrate after t time. Yes,
and that is the angle of reflection R. Now from A dash waves travel in the forward direction in the same manner. Now light ray travel from rarer to denser medium. From B dash waves start to travel from S. Now this is known as refracted wave front. That is the angle R. Look, this angle is R. That angle is R. So this angle is equal to 90 minus R. This angle is 90 degree and that is also equal to 90 degree. 90 minus R, this is 90, then that's why that angle is equal to R. Yes, now from right angle triangle A B dash sine I equal to sine I. Look, that is the angle I, that angle 90 minus I, and that is the total angle is 90 degrees. So 90 minus I, that is the I. So sine I, for I perpendicular is BB dash, hypotenuse is AB dash. So sine I equal to BB dash upon AB dash. So sine I equal to V1T upon AB dash, equation 1. Now from right angle triangle A dash B dash, look, A dash B dash sine R. For R, A dash is a normal and AB dash is the hypotenuse. So sine R equal to A dash upon AB dash, A dash upon AB dash. Now in place of A dash we can put V2T. Yes, V2 is the speed of light in denser medium and T is the time in which light cover the distance A to A dash. Distance is the velocity into time, that's why A dash is equal to V2 into T. So sine R equal to V2T upon AB dash, equation 2. Now equation 1 divided by equation 2. So sine I upon sine R equal to V1T upon AB dash upon V2T upon AB dash. AB dash cancel, T cancel. So sine I upon sine R equal to V1 upon V2. In each medium, the speed of light is constant. Light moves with different speed in different medium, but in a particular medium, the speed of light is constant. That's why the V1 upon V2 for the medium first and second is constant. That's why we can write sine I upon sine R equal to constant. Yes, this is Snell's law or proof of law of reflection. According to proof of law of reflection, ratio of sine of angle of incidence to sine of angle of reflection is constant. Yes, so we use, so student, by using Huygens theory, we explain the refraction of light from rarer to denser medium and prove the Snell's law. तो देखो बच्चों, आज के सेशन में हम डिस्कस कर रहे हैं प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूजिंग हाइगेन थ्योरी. यस, तो देखिए हाइगेन थ्योरी के बेस पे स्नेल्स लॉ प्रूफ ऑफ
लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन प्रूफ कर रहे हैं, तो हम सबसे पहले डिस्कस करेंगे प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन जब लाइट रेयर से डेंसर मीडियम में ट्रेवल कर रही है। तो देखिए सोर्स ऑफ वेव से वाइब्रेशंस और डिस्टरबेंस वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल ट्रांसफर हो रहे हैं, ट्रांसफर होते हुए किसी टाइम में ए डैश पे पहुंचे, यानी किसी टाइम में ए पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करता है। एक बार और देखिए, सोर्स ऑफ वेव से एक पार्टिकल से दूसरे पार्टिकल को वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो रहे हैं, वेव्स ट्रेवल कर रही है, और किसी टाइम में ए पार्टिकल ने एनर्जी रिसीव की, ए पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू करता है। उसी समय और पार्टिकल्स के पास भी एनर्जी पहुंचेगी। ए बी लाइन पे जितने पार्टिकल्स हैं, वो जिस समय ए पार्टिकल वाइब्रेट करना शुरू कर रहा है, उसी समय ए बी लाइन पे जितने पार्टिकल्स हैं सब एनर्जी रिसीव कर रहे हैं सोर्स से और एक साथ वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट करना शुरू कर रहे हैं। तो ए बी कहलाएगा ए इंसिडेंट वेव फ्रंट। ए बी कहलाएगा आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट, क्योंकि जितने भी पार्टिकल ए बी पे प्रेजेंट है, जैसे ए पार्टिकल के पास एनर्जी पहुंच रही है, वैसे हर पार्टिकल के पास सोर्स से वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल एनर्जी ट्रांसफर होते हुए, डिस्टर्बेंस से वाइब्रेशंस ट्रांसफर होते हुए पहुंच रहे हैं। और जिस समय ए पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है, उसी समय इस लाइन पे जितने पार्टिकल्स हैं एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, वाइब्रेशन सेटअप कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, इसलिए ए बी कहलाएगा आपका इंसिडेंट वेव फ्रंट। इंसिडेंट वेव फ्रंट। अब ये इंसिडेंट वेव हो गए। अब मैंने इस पॉइंट पे नॉर्मल ड्रॉ किया ए पॉइंट पे, तो ये एंगल ऑफ इंसिडेंस हाइगन थ्योरी से पहले लेटर में हमने आपको एक्सप्लेन किया था। हाइगन थ्योरी के अकॉर्डिंग वेव फ्रंट और वेव्स के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है ज्योमेट्री, हाइगन थ्योरी की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग। तो ये 90 डिग्री है पूरा एंगल, ये आई है तो ये 90 माइनस आई है। अभी पूरा एंगल 90 है, इतना पार्ट 90 माइनस आई, तो ये आई एंगल आया। अब ए बी पे जितने पार्टिकल्स हैं, ये हाइगन थ्योरी के अकॉर्डिंग अभी ईच वाइब्रेटिंग पार्टिकल प्लेस्ड ऑन वेव फ्रंट एक्ट्स लाइक ए न्यू सोर्स ऑफ वेव। तो ए बी पे जितने पार्टिकल्स हैं सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो आगे दूसरे पार्टिकल्स को से कोलिजन होगा, दूसरे पार्टिकल्स को एनर्जी ट्रांसफर करेंगे। तो ए बी पे जितने पार्टिकल है वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस ट्रांसफर करते हुए फ्रेश वेव्स ओरिजिनेट कर रहे हैं, इन फ्रेश वेव्स को कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स। तो देखिए वेव्स होती है बच्चों मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस इन द मीडियम। जब वेव आगे चल रही है तो वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल एनर्जी डिस्टर्बेंस आगे ट्रांसफर हो रहा है। तो देखिए बी से वाइब्रेशंस डिस्टर्बेंस ट्रेवल कर रहे हैं, सेकेंडरी वेवलेट्स ट्रेवल करते हुए बी से टी टाइम में बी डैश पर पहुंचे, कितनी वेलोसिटी से v1। हमने माना रेयर मीडियम में स्पीड v1 है, तो डिस्टेंस बी से बी डैश तक कवर हुई v1t। उसी टाइम में ए से वेव्स चली और टी टाइम में ए डैश पे पहुंची। चूंकि लाइट रेयर से डेंसर आ रही है, वेव्स रेयर से डेंसर आ रही है, तो स्पीड वेव्स की कम स्लो डाउन हो गई, लेस हो गई। डेंसर में स्पीड कम होती है वेव की, और लाइट रेयर से डेंसर में जा रही है तो नॉर्मल की तरफ बेंड हो गई। नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड, ये रिफ्लेक्टेड रे हो गई, नॉर्मल और रिफ्लेक्टेड रे के बीच का एंगल है r। अब टी टाइम बाद ए से वाइब्रेशन डिस्टर्बेंस ट्रेवल करते हुए ए डैश पे पहुंचे। अब ए डैश पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है एनर्जी रिसीव करके। अब ऐसे हर जितने भी ए बी पे पार्टिकल्स हैं, ए बी वेव फ्रंट पे पार्टिकल्स सब आगे वाइब्रेट करते हुए एनर्जी ट्रांसफर कर रहे हैं। अब टी टाइम बाद हर वाइब्रेटिंग पार्टिकल से डिस्टर्बेंस टी टाइम बाद किसी टी टाइम बाद किसी और पार्टिकल्स पे पहुंचेंगे। तो हम देखना चाहते हैं टी टाइम बाद नया ग्रुप वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का क्या है। ए बी से वाइब्रेशंस ट्रांसफर हुए वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, बी से बी डैश पे पहुंचे, ए से ए डैश पे पहुंचे। हर ऐसे जितने भी पार्टिकल्स सबसे टी टाइम बाद डिस्टर्बेंस किसी और पॉइंट पे पहुंचेंगे, कोई न्यू ग्रुप वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का ऑब्टेन होगा, तो हम उस ग्रुप को डिटेक्ट करना चाहते हैं, लोकेट करना चाहते हैं, शो करना चाहते हैं डायग्राम में। तो हमने हाइगन थ्योरी की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ए डैश का आर्क ड्रॉ किया, इस आर्क पे टेंजेंट डाली। तो हाइगन थ्योरी की ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग ये टेंजेंट को सभी पॉइंटों से होकर जाएगी जो टी टाइम बाद वाइब्रेट कर रहे हैं। क्योंकि बी डैश भी टी टाइम बाद वाइब्रेट कर रहा है, तो ये टेंजेंट बी डैश से भी पास होगी। तो ये टेंजेंट कहलाएगी आपकी रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट। यस, अब देखिए ये टेंजेंट है, वेव फ्रंट एज ए टेंजेंट के रूप में एक्ट कर रहा है, ए डैश एज ए रेडियस के रूप में एक्ट कर रहा है। रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री का एंगल होता है, तो 90 डिग्री हो गया। और ए से ए डैश तक की डिस्टेंस है v2t। डिस्टेंस होती है वेलोसिटी इनटू टाइम, और ये एंगल r है। जब ये r है तो ये 90 माइनस r हुआ, ये 90 माइनस r, तो ये एंगल r। अब बच्चों
तो ये वेव हाइगन वेव थ्योरी की हेल्प से हमने रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट एक्सप्लेन किया। अब हम ए बी बी डैश ट्राइंगल में साइन आई अप्लाई किया। साइन आई बी बी डैश अपॉन ए बी डैश, बी बी डैश की वैल्यू रख दी 90, वो B1T, ये एंगल 90 है। देखिए बी बी डैश में ए बी बी डैश में ये एंगल 90 है। आई के सामने का लाइन परपेंडिकुलर, बी बी डैश परपेंडिकुलर, ए बी डैश हाइपोटेनियस है, तो बी बी डैश अपॉन ए बी डैश B1T अपॉन ए बी डैश। और फ्रॉम राइट एंगल ट्राइंगल ए डैश बी डैश में अप्लाई करें तो साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस, तो ए डैश अपॉन ए बी डैश, ए डैश की रख दी वैल्यू B2T अपॉन ए बी डैश। दोनों को डिवाइड कर दिया, डिवाइड किया तो ये B1 अपॉन B2 आया। किसी भी मीडियम में बच्चों स्पीड लाइट की कांस्टेंट होती है, लाइट मूव्स विद डिफरेंट स्पीड इन डिफरेंट मीडियम। B1 फर्स्ट मीडियम में लाइट की स्पीड है, B2 सेकेंड मीडियम में लाइट की स्पीड है, तो इन दो मीडियम के लिए B1 अपॉन B2 की वैल्यू कांस्टेंट होगी, इसलिए साइन ए अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट। यस, तो हमने रिफ्रैक्शन ऑफ प्रूफ ऑफ स्नेल्स लॉ प्रूफ किया जब लाइट रेयर टू डेंसर मीडियम ट्रेवल कर रही है। नाउ वी डिस्कस व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम डेंसर टू रेयर मीडियम। Yes, now proof of law of refraction using Huygens theory or Snell's law when light travel from denser to rarer medium. So that is the separation above which there is a denser medium 2 and below that there is a rarer medium 1. Now from the source disturbance travel in the form of wave and reach at the A particle. A particle start to vibrate. When A particle receive the energy and start to vibrate, then all the particles which present on AB receive the disturbance, receive the vibrations or energy and start to. So AB in the same phase, AB is the group of vibrating particles which vibrate in same phase. So AB is known as incident wave front. Incident wave front, incident wave front. And now that is the, now at that point we draw the normal, that is the angle of incidence I. So this angle is equal to 90 minus I. As a result that angle is equal to I. Yes, this is normal, that is the normal. So total angle is that 90 degree. According to theory of Huygens, geometry of Huygens theory, waves makes angle 90 degree with the wave front. Now according to Huygens theory, each particle present on wave front, AB wave front, acts like a new source of wave from which fresh waves originate. So from B point, fresh waves, these waves are called secondary wavelets, travel from B to B dash with velocity V2. So distance covered is V2 into T. In the same time, waves travel from A to A dash in the rarer medium. In the rarer medium, the speed of wave is more than the denser medium. So B1 is, suppose in rarer medium speed is V1, so V1 is higher than V2, and now light wave travel from denser to rarer medium, so waves moves away from normal. Yes, waves moves away from normal. Yes, so look, waves moves away from normal and cover more distance as compared to incident wave. Yes, as compared to incident wave. Yes, that wave moves away from normal and making an angle R, and after t time with velocity v1 it reached at a dash point. In the same time from each vibrating particle wave travel
and reached at different points. Yes. Now we want to know the group of vibrating particles which start to vibrate after t time. So we take a radius of a dash and draw the tangent. Yes. Now at that tangent we again draw that in a yes. We just is a diagram simplify that. Look, these are the incident wave, and at that point we draw the normal, that is the angle I. That angle is 90 minus I, and that angle is I. Now light travel from rarer to denser medium, so light bend away from normal and travel more distance as compared to BB dash, because in rarer medium speed is higher and that angle is R. Now reach from A to A dash. Now we draw the arc of A dash radius, and that arc we draw the tangent according to Huygens theory. That tangent is passed through all the points, that is the arc of A dash radius, and at that tangent we draw the tangent at that arc. According to Huygens theory, that tangent pass through all the points which start to vibrate after t time. B dash also start to vibrate with t time, that's why that tangent also pass through B dash. So that is the new wavefront which start to vibrate after t time. Now from A dash, B dash is the new group, that is known as new group of vibrating particles which start to vibrate after t time. That's why it is known as refracted wave front. That is known as refracted wave front. Now from refracted wave front, waves start to move S in the forward direction. Now that angle is R, so this angle is equal to 90 minus R, that is the 90 degree. So this angle is equal to R, and that is also 90 degree. Yes. This is the new group of vibrating particles which receive the energy and start to vibrate after t time. Now look, from right angle triangle ABB dash sin I equal to BB dash upon AB dash. So sin I equal to B2T upon AB dash, equation 1. And from right angle triangle A dash B dash sin R equal to A dash upon AB dash. So sin R equal to V1T upon AB dash. Equation 2. Now equation 1 divided by equation 2. So sin I upon sin R equal to V2T upon AB dash upon V1T upon AB dash. AB dash cancel, T cancel. So sin I upon sin R equal to V2 upon V1. V2 is the speed of wave in denser medium, and V1 is the speed of wave in rarer medium, which is denoted by 1, and denser medium denoted by 2. In a particular medium, speed of wave is constant. That's why for these two medium, V2 upon V1 is constant. So sin I
अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, साइन आई अपॉन साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट. दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. दिस इज कॉल्ड स्नेल्स लॉ. तो देखो बच्चों, ये दिस इज केस सेकेंड. तो देखो बच्चों, अब हम डिस्कस कर रहे हैं केस सेकेंड प्रूफ ऑफ लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन को करने के लिए, जिसमें लाइट ट्रेवल कर रही है डेंसर से रेयर मीडियम में. तो देखिए, हमने एज्यूम किया कि सोर्स से, किसी सोर्स से डिस्टर्बेंस से वाइब्रेशंस ट्रांसफर हो रहे हैं वन पार्टिकल टू अनदर पार्टिकल, मोशन ऑफ डिस्टर्बेंस को ही वेव कहते हैं. तो वेव ट्रेवल करती हुई किसी टाइम में ए पार्टिकल के पास वाइब्रेशंस पहुंचे, ए पार्टिकल ने वाइब्रेशन सेटअप किया, उसी टाइम में ए बी पे जितने पार्टिकल्स हैं एनर्जी रिसीव कर रहे हैं, सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हैं, तो ए बी कहलाएगा इंसिडेंट वेव फ्रंट. और ये इंसिडेंट वेव नॉर्मल ड्रॉ किया, ये एंगल आई है, ये 90 माइनस आई हो गया, पूरा एंगल 90 है तो एंगल आई आ गया. अब हाइगन थ्योरी के अकॉर्डिंग ए बी वेव फ्रंट पे जितने पार्टिकल्स प्रेजेंट है वो अपने आप में न्यू सोर्स ऑफ वेव के रूप में एक्ट करेंगे, जिनसे कि फ्रेश वेव्स ओरिजिनेट होंगी, फ्रेश डिस्टर्बेंस ओरिजिनेट होंगे, एनर्जी ट्रांसफर होगी. तो किसी टाइम टी में वाइब्रेशंस बी से वेव्स चली और बी डैश पे पहुंची v2 वेलोसिटी से, तो डिस्टेंस ट्रेवल की v2 इंटू टी. ऐसे अब ए से वाइब्रेशन चले, डिस्टर्बेंस चले, फ्रेश वेव्स ओरिजिनेट हुई, इन वेव्स को कहते हैं सेकेंडरी वेवलेट्स. ए से वेव्स चली और ए डैश से पहुंची. अब देखिए, लाइट रेयर मीडियम में ट्रेवल कर रही है, रेयर मीडियम में स्पीड ज़्यादा होती है डेंसर मीडियम की रेस्पेक्ट में, इसलिए. और दूसरी बात, लाइट डेंसर से रेयर में जा रही है, इसलिए नॉर्मल से दूर हटेगी. तो देखिए, नॉर्मल से दूर हटेगी, इसलिए नॉर्मल और रिफ्रैक्टेड रे के बीच में जो एंगल आर है, ये इंसिडेंस एंगल से ग्रेटर होगा, जो हमने रे ऑप्टिक्स में डिस्कस किया था. तो लाइट नॉर्मल से डिस्टर्ब, जो वेव है नॉर्मल से दूर हटती हुई, अवे फ्रॉम नॉर्मल होती हुई ए से ए डैश पहुंची, डिस्टेंस ट्रेवल करी v1t. ए डैश बी डैश की रिस्पेक्ट में लार्जर होगा. यस, ऐसे ही इस टाइम में वेव्स अलग अलग पॉइंट ऑफ ए बी डैश से ए बी से वाइब्रेशन चले और टी टाइम बाद किसी पॉइंट पर पहुंचे, सेकेंडरी वेव टी टाइम बाद कौन अलग अलग टी टाइम बाद नया ग्रुप वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का ऑब्टेन होगा. बी से एनर्जी ट्रांसफर हुई, टी टाइम में बी डैश वाइब्रेट पार्टिकल कर रहा है, बी डैश पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है. ए से वेव्स ट्रांसफर हुई, टी टाइम में ए डैश पे एनर्जी पहुंची, ए डैश पार्टिकल वाइब्रेट कर रहा है. ऐसे ही ए बी पे जितने पार्टिकल आगे एनर्जी ट्रांसफर करेंगे और टी टाइम बाद किसी दूसरे पार्टिकल को एनर्जी ट्रांसफर होगी. तो हम देखना चाहते हैं ए टी टाइम बाद नया ग्रुप वाइब्रेटिंग पार्टिकल्स का क्या कहाँ लोकेट है, उसकी लोकेशन क्या है, उसे कहेंगे हम न्यू वेव फ्रंट. तो उसे ड्रॉ करने के लिए हमने ए डैश रेडियस का आर्क ड्रॉ किया, ये आर्क ड्रॉ किया और इस आर्क पे टेंजेंट ड्रॉ करी. तो हाइगन थ्योरी की कंसेप्ट के अकॉर्डिंग, ज्योमेट्री के अकॉर्डिंग, ये टेंजेंट उन सभी पॉइंटों से होकर जाएगी जो टी टाइम बाद वाइब्रेट कर रहे हैं. तो चूंकि बी डैश भी टी टाइम बाद वाइब्रेट कर रहा है, तो ये टेंजेंट बी डैश से भी पास होगी, ये टेंजेंट बी डैश से पास होती हुई बी डैश से पास हुई. तो हमें नया वेव फ्रंट मिला ए डैश बी डैश, जिसे हम कहेंगे रिफ्रैक्टेड वेव फ्रंट. अब ये नया ग्रुप है, तो इससे वाइब्रेशंस आगे ट्रांसफर हुए, वेव्स आगे ट्रांसफर हुए. यस, अब ये एंगल आर है, तो ये एंगल 90 माइनस आर हो गया और ये 90 है. क्यों? क्योंकि वेव फ्रंट एज ए टेंजेंट है और वेव्स ए डैश एज ए रेडियस है, तो रेडियस और टेंजेंट के बीच में 90 डिग्री एंगल होता है, इसलिए 90. तो ये आर है, ये 90 माइनस आर हो गया, ये 90 माइनस आर है, ये 90 है, तो एंगल आया आर. अब इस ट्राइंगल में ए बी बी डैश में हमने साइन आई अप्लाई किया, तो साइन आई इक्वल टू बी बी डैश अपॉन ए बी डैश. बी बी डैश की वैल्यू रख दी b2t, तो b2t अपॉन ए बी डैश. और फिर हमने इस ट्राइंगल को लिया ए डैश बी डैश, इसमें हमने साइन आर अप्लाई किया, तो साइन आर इक्वल टू परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूस, तो ए डैश अपॉन ए बी डैश. ए डैश की वैल्यू रख दी b1t, तो b1t अपॉन ए बी डैश, दोनों को डिवाइड कर दिया, तो साइन ए अपॉन साइन आर b2 अपॉन b1. b2 डेंसर मीडियम में स्पीड है लाइट की, b1 रेयर मीडियम में स्पीड है लाइट की, सेकंड मीडियम में, वो फर्स्ट मीडियम में, और b2 सेकंड मीडियम में स्पीड ऑफ लाइट है. 2 हमने डेंसर मीडियम डिनोट किया है, 1 हमने रेयर मीडियम डिनोट किया है. किसी मीडियम में लाइट की स्पीड एक पर्टिकुलर मीडियम में लाइट की स्पीड कांस्टेंट होती है, तो b2 अपॉन b1
इन दो मीडियम के लिए ये रेशो कांस्टेंट है, इसलिए साइन ए अपॉन साइन आर कांस्टेंट। यही आपका स्नेल्स लॉ है। यस, सो दिस इज स्नेल्स लॉ। सो स्टूडेंट्स, इन दिस सेशन वी एक्सप्लेन द रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट when light travel from rarer to denser medium and denser to rarer medium with the help of Huygens theory, Huygens-wave theory, and also prove Snell's law or law of refraction. Thank you.